रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कंप्रीहेंडिंग आफ्टर रीडिंग। कंप्रीहेंड का मतलब होता है समझना किसी चीज को। कंप्रीहेंड वर्ब है ये, और इससे एक नाउन बनता है कंप्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होते हैं जो अनसीन पैसेज जिसको हम बोलते हैं, ये राइट रीडिंग होता है। रीडिंग भी, रीडिंग कंप्रीहेंशन भी होता है, लिसनिंग कंप्रीहेंशन भी होता है। लिसनिंग कंप्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया? सुन करके समझना किसी चीज को, वो भी जरूरी है। In your higher education, when you move into your colleges, in some professional courses, or if you have English medium, in English medium classes, then your teachers, your lecturers, your professors deliver their lectures into English. So that time you need listening skill, so that you can understand, you can comprehend what is being told, what is being taught. So उसके लिए ये लिसनिंग और हर चीज केवल प्रैक्टिस से डेवलप होगी आपकी। देखो, चाहे रीडिंग हो, चाहे लिसनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली जो पर्पस है ना किसी चीज का, लैंग्वेज का पर्पस क्या है? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, बस वो आपकी सॉलिड होनी चाहिए। उसके लिए ग्रामर भी होनी चाहिए, वोकैबुलरी भी होनी चाहिए। सो आई एम स्टार्टिंग समथिंग फॉर यू, and you have to listen to it carefully, and please switch on your camera so that there may be a contact between us, between you and between me, because I think it is a necessary part of learning, because you are in live classes. So you know there are a lot of mysteries in the world. There are so many mysteries in the world that are uncovered for us, but some of the mysteries we have discovered, we have, but some are uncovered, they are hidden, we don't know about them. What is this? So one of the greatest mysteries of bird's life is traveling. नोट कर सकते हैं आप, नोट्स लिख सकते हैं चीजों को। एवरी ईयर, सुनिए ध्यान से, मेरा इंटोनेशन देखो, मेरा एक्सेंट देखो, मेरा प्रोनाउंसिएशन देखो, समझो चीजों को। जितने फोकस्ड रहोगे आप, उतना आपको क्लियर होगा। कुछ भी दिमाग में नहीं होना चाहिए इस समय, बस मेरी आवाज पे आपको फोकस करना है। ये इसको कहते हैं फोकस। माइंडसेट क्या है कि जो भी बोला जाएगा उसको मुझे समझना है। अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे फोकस अच्छे से करना है, ध्यान कहीं इधर उधर नहीं ले जाना है। ये आपका माइंड सेट हो गया, और अब आप फोकस करो। एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर, birds travel from northern regions of Asia, Europe and सर ये तो हो गया। America to the southern warmer lands. बीच में बिल्कुल मत बोलना अभी कोई भी। They make the return journey again during spring and early summer. लिख सकते हो आप बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, लेकिन हमेशा इतना धीरे नहीं बोलूंगा। They are very punctual. They means birds which travel from different places to different places. They make the return journey again during spring and early summer. They are very punctual without watch. This is a strange thing. This is the mystery. How they know the time without watch, but they are punctual. They are punctual unless they are delayed by bad weather. They face many dangers and hardships while traveling long distances through the air, over hills, forests, plains, and large stretches of water. Sometimes sudden storms,
उच्चारणों पे ध्यान दो। अराइज and drive them far out of course. Out of course means out of direction. Often they are blown right out to sea and are drowned in the wild waves. At night, bright lights attract and confuse the birds. They cannot fly at their fastest speed. The migration speed is usually from 48 to 64 kilometer an hour. मैं पता है कल कोई न्यूज देख रहा था तो उसमें मुझे एक बात पता चली कि जो स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो ह्यूमन बीइंग्स ने बना करके छोड़े हुए हैं, क्या स्पीड होगी एक सैटेलाइट की चलने की? कैन यू टेल मी? सर 100 किलोमीटर पर सेकंड। 25,000 किलोमीटर एन आवर. I was amazed when I listened it. 25,000 kilometer an hour. And the speed of these migrated birds here is being told 48 to 64 kilometers an hour. They cannot, sorry, and rarely exceeds 80. Exceeds का मतलब होता है ज्यादा होना. Rarely exceeds 80. क्लियर हो गया आपको? बस इतना सही सुनाऊंगा मैं आपको. कुछ पूछना है? कुछ लिखा होगा पूछ लो, सेकंड राउंड में लूंगा फिर मैं. अरे अब सर ये एक्सीड्स की स्पेलिंग क्या है? EXCEED. थैंक यू सर. कुछ लो, कुछ पूछना है तो. कुछ तो समझ में आया होगा. चलो सेकंड में चालू कर रहा हूँ. सर सडन स्टॉर्म्स क्या होते हैं? सडन, अचानक. मतलब अचानक से कैसे बनते हैं वो? स्टॉर्म्स, तूफान अचानक से आते हैं. तूफान अचानक से आएंगे और कैसे आएंगे? जैसे उनकी फॉर्मेशन तो धीरे धीरे होती होगी ना. अरे तो आएंगे तो अचानक से ना. फॉर्मेशन हो रही होगी 2 महीने से 3 महीने से. तो बरसात का फॉर्मेशन कितने टाइम से हो रहा होगा हमें क्या पता. हमारे तो रात को अचानक आ गई है ना. अचानक से बरसात आ गई यार. तो कहेगा जी फॉर्मेशन तो 2 महीने पहले से हो रहा था. तो पहले ही आप मत आते फिर. पता थोड़ी था हमारे को कि साहब फॉर्मेशन हो रही है इसकी. आएगा तो अचानक ही ना. अब मान लो कोई गेस्ट आ गए अचानक हमारे घर के अंदर. अरे सर अचानक थोड़ी आए हैं, 6 घंटे हो गए इनको तो अपने घर से निकले हुए. अरे तो हमारे यहाँ तो अचानक ही आए ना भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा करो, कोई बात नहीं है. उल्टे सीधे ही, ज्यादा उल्टे सीधे मत पूछा करो. चलिए नेक्स्ट रीडिंग. सर आप समझ गए? नेक्स्ट राउंड. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, कैमरे चालू रखो अपने अपने. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ द बर्ड इज of the bird's life is traveling. Every year during autumn एक मौसम का नाम होता है पतझड़. and early winter birds travel from northern regions of Asia, Europe and America to the southern warmer places. आसमान में देखते भी होंगे आप लोग पक्षियों को उड़ते हुए झुंड के झुंड. कभी कभी
दिखेंगे आपको, अब देखना अभी सर्दी आने से पहले, आप देखना छत पे खड़े हो गए। सर कबूतर तो है ना बिल्डिंग को पूरा से अरे मैं माइग्रेटेड बर्ड्स की बात कर रहा हूँ सुगले, कबूतरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और सर पर देख they make the return journey again during spring and early summer. They start to come in early winter and they start to go back in early summer. They are very punctual unless they are delayed by bad weather. They face many dangers and hardships while traveling long distances through the air over hills, forests, plains, and large stretches of water. Stretches का मतलब फैलाव, जैसे समुद्र हो गए, पानी। स्ट्रेचेज ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया? पानी का फैलाव। पानी का फैलाव का मतलब समुद्र के अंदर पानी कितनी दूर तक आपको दिखाई देता है, दैट इज फैलाव। Sometimes sudden storms arise and drive them far out of course, out of direction. Often they are blown right out to sea and are drowned in the wild waves. At night, bright lights attract and confuse the birds. They cannot fly at their fastest speed. The migration speed is usually from 48 to 64 km an hour and rarely exceeds 80. Any question? Ready? बस कैमरे चालू कर लो अपने अपने. Now I have some questions. फोकस कर लेना, कैमरे चालू कर लो अपने अपने. सुना है आपने, उसी के बेस पे आपको आंसर देने हैं. समझ गए? कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो. समझ में तो आ गया होगा ना पैसेज क्या है, किसके बारे में है, क्या क्या फैक्ट दिए हुए हैं, कुछ बातें तो समझ में आई होंगी ना. यस सर. ओके. According to you, what should be the title of the passage? Write it down in your notebooks. The title of the passage. पहला नंबर डालो और अपनी कॉपी में लिख दो टाइटल क्या है इसका. आपके अकॉर्डिंग टाइटल क्या होना चाहिए? जो भी आपको सूट करता हो, आपने लगता हो ठीक है भाई. अब देखो इसके टाइटल्स क्या क्या हो सकते हैं. आपने क्या लिखा है? बर्ड्स माइग्रेशन, बर्ड्स ट्रैवलिंग. सर मैं बोल लूं पहले? बर्ड्स मिस्ट्री, ये भी तो है ना. और किसी ने कुछ लिखा हो तो बता दो. सर माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स. हाँ, एक ही बात है. ओके, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स ठीक है. या बर्ड माइग्रेशन, इट्स ओके. और कोई किसी का? सर बर्ड्स फ्लाई, दी फ्लाई ऑफ बर्ड. माइग्रेशन बर्ड. सॉरी, जर्नी ऑफ माइग्रेशन बर्ड. माइग्रेटेड वर्ड्स करो, जर्नी कर दो, बर्ड्स जर्नी कर दो. ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए आपका टाइटल. टाइटल ऐसा होना चाहिए छोटा जितना हो सके और उसमें बात समझ में आ जाए. सर, हाँ. the mystery of migration of birds. सॉरी, Mystery of migration of birds. मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स कर सकते हो आप.
मिस्ट्री ऑफ Sir, माइग्रेटिंग uncovered बर्ड्स कर mystery. सकते हो, बोलो। Uncovered mystery of birds. अनकवर्ड मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स में थोड़ा बड़ा हो गया बस, और कोई बात नहीं है। तो पर मिस्ट्री से भी काम हो जाएगा, मिस्ट्री मतलब अनकवर्ड ही है वो। Unless you Sir, the uncovered, fly unless you of discover it, that is uncovered. हाँ, sir, the fly of birds. सॉरी, Fly of birds. हाँ थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स कर सकते हो आप। Sir, हाँ sir, traveling the mystery of birds. हाँ हाँ, ट्रैवलिंग द मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स कैसे हो जाएगा? नहीं होगा सर? हाँ, ओके सर। ट्रैवलिंग ऑफ द बर्ड्स कर सकते हो, बर्ड्स ट्रैवलिंग कर सकते हो, जर्नी ऑफ बर्ड्स कर सकते हो। ओके, कोई बात नहीं है, फिर भी ठीक है, आप अपना दिमाग चलाओ ना, यहाँ पर रटना नहीं है कुछ भी। My next question is this. About which mystery of birds are we talking in this passage? लिखिए फटाफट से, सेकंड नंबर डाल के, वन वर्ड में लिख सकते हैं आंसर आप। According to this listening piece, what do you think that what is the mystery of bird's life, one of the bird's life that has been described in this passage? लिख दिया होगा शायद आपने। तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रैवलिंग ऑफ बर्ड्स। सर डायरेक्टली हम माइग्रेशन नहीं लिख सकते? माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स कर सकते हो, माइग्रेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा वो। ट्रैवलिंग खाली ट्रैवलिंग खाली ट्रैवलिंग भी चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन वर्ड ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग हो गया, माइग्रेशन हो गया, जर्नी हो गया, ये आना चाहिए। Sir, the punctuality of bird. बेटा The punctuality of birds. थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, हो सकता है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिमाग चलाओ अपना, मेन आंसर आना चाहिए। शब्द इधर उधर होंगे, देख लेंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। बहुत अलग तरीके से मैं, मतलब मेरा माइंड सेट है कि मुझे अलग अलग तरीके से चीजें करवानी है, तो फिर मैं उसको कैसे भी करवा लेता हूँ, बात खत्म है। मेरे एक्सपीरियंस का अगर ये भी फायदा नहीं मिला तो क्या मिला? सर वो बोलो। मूविंग ऑफ बर्ड्स हो सकता है। मूविंग ऑफ बर्ड्स भी हो सकता है, पर मूविंग थोड़ा सा, मूविंग और ट्रैवलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा ना। यस सर। तो मैं आई कैन मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर, but this cannot be called traveling. But if I am going to Delhi or Mumbai or other city or like that or other country, that is called the traveling. और कोई बात? दिमाग खोलो अपना, दिमाग जितना सोच सकते हो उतना सोचो चीजों के बारे में, और फोकस करके रखो आप। Okay, my next question is, when do these birds, those are migratory birds, travel? When do these birds travel? सिंपल क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से। आंसर सर लिखना है। लिखो कॉपी में फटाफट से, थर्ड नंबर डाल के। इससे सबका हो जाएगा ना, पूछूंगा तो केवल एक ही जवाब देगा, बाकी सोते रहेंगे। मेरा नंबर जब आएगा जब देखी जाएगी। अब इसमें समझते हो आप, प्लस राइटिंग भी चल रही है आपकी, चल रहा है सब कुछ लिसनिंग पे ही है ना, जोरदार बात चल रहा है सब कुछ लिसनिंग पे ही। आपके सामने कुछ मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं, सुने जाओ और लिखे जाओ, सबका टेस्ट हो जाएगा ना यहाँ पे। सर स्पीकिंग का नहीं होएगा? हैं? करेक्ट क्वेश्चन। स्पीकिंग का नहीं होएगा? इसका नहीं होएगा, स्पीकिंग का भी होएगा, सबर तो रख थोड़ा सा। सर विंटर और समर सिंगुलर प्लूरल कैसे हो सकते हैं? सिंगुलर ही होते हैं तो प्लूरल कैसे होंगे?
सर ऐसे बोलते हैं ना विंटर्स समर्स, फिर वो क्यों हो जाता है, वाटर को भी वाटर्स बोल देते हैं ना कई बार अपन। क्यों? वो इसलिए बोल देते हैं कि बहुत सारी छुट्टियां हो गई हैं, समुद्र का पानी हो तो वाटर्स बोल देते हैं अपन, मटके का पानी को थोड़ी वाटर्स बोल देंगे अपन, वो एक्सेप्शंस है। सर वो फूड को फूड्स बोल देंगे क्या? बोल देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस जब कैपेसिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में होता है तब बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज है ये, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स जहां पर 2 + 2 = 4 ही होगा। चलो एक छोटी सी बात बताओ तुम मेरे को, मास्टरनी कोई शब्द होता है? नहीं पूरे सर। ब्रह्मांड में कहीं भी घूम के आ जाओ तुम, मास्टरनी शब्द नहीं मिलेगा, डॉक्टरनी नहीं मिलेगा, और कलेक्टरनी नहीं मिलेगा तुम्हारे को। ये हमारे बनाए हुए शब्द हैं, ऐसे ही बन जाते हैं शब्द बेटा। सर ये अपन डॉक्टरनी में नहीं बोलते, डॉक्टरनी बोलते हैं। डॉक्टरनी बोलते हैं, डॉगनी। सुनो ना मेरी बात। सरपंचड़ी सर, और आजकल सर तो सरपंचड़ी टीचर के हिसाब से टीचरी, ये वाटर। भाषा है। ओके, भाषा में ऐसा होता है बेटा। माय क्वेश्चन सरपंचड़ी। वाज दैट व्हेन डू दीस बर्ड्स ट्रैवल। क्वेश्चन समझ लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं 1% लोग ही आंसर दे पाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं दे पाएंगे आंसर। इसका लिख लिया कॉपी में, व्हेन डू दीस बर्ड्स ट्रैवल। अब सुनो इसका आंसर, आप में से ज्यादातर लोगों ने आधा आंसर लिखा है। दे ट्रैवल इन अर्ली विंटर एंड इन अर्ली समर। सर मैंने लिखा है ऑटम्स और अर्ली विंटर्स एंड स्प्रिंग और अर्ली समर्स। सर इन विंटर्स चल तो जाएगा। आपने ज्यादातर लोगों ने केवल ऑटम का लिखा होगा, विंटर का लिखा होगा, अर्ली विंटर का। सर ऑटम और विंटर, अर्ली विंटर लिखा है बस। है तो अब आधा गया ना। और बाद में आते हुए यात्रा नहीं करते क्या वो? सर अर्ली Do they नहीं not लिखेंगे travel तो भी when they चलेगा come ना? back? सर अर्ली नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना? अर्ली थोड़ा सा ठीक है, वो पहले ही आ जाते हैं एक्चुअली, और पहले ही निकल जाते सर मैंने आधा आधा लिखा है। हैं। आधा मुझे पता था, आधा आधा ही लिखोगे आप। सर एक सवाल पूछूं? हाँ, सर 1 + 1 = 2 टू प्रूव। this is not the class of mathematics, okay? Now listen to the next question. सर ये तो 12th क्लास का टॉपिक है। From where do they come? सर ये कैसे फिक्स हो सकता है? फिक्स है तो होएगा ही। From where do they come? सर तो हर एक कॉन्टिनेंट के लिए अलग होगा। From where Sir, do they come? सर विंटर में आते हैं, समर में आते हैं। चुप रह, जवाब दे बस। सर मुझे तो हर एक कॉन्टिनेंट के लिए अलग होगा। चुप रह, 1 मिनट, जवाब दे दे चुपचाप, जो तेरे को आ रहा है। नो आर्ग्यूमेंट। होगा, फला होगा, डिमका होगा। हम पागल हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तू पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन भी तुम्हारे हिसाब से बनाऊं मैं? लिखो बराबर से आंसर। फ्रॉम वेयर डू दे कम? सर सिंपल फंड है। सिंपल है एकदम यार, इसमें भी सुनते तो है नहीं ध्यान से जब मैं सुनाता हूँ तो। नहीं सर, इधर ठंडी पड़ेगी उधर चल जाएंगे, उधर ठंडी पड़ेगी इधर आ जाएंगे। रुक जा, अभी मैं बताता हूँ। अब इसका आंसर है फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन्स। सर मैंने लिखा है फ्रॉम, ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। सर मैंने लिखा है फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया एंड यूरोप। ठीक है। सर हाँ, सर सिर्फ नॉर्दर्न रीजन या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिख देंगे तो चल जाएगा क्या? थोड़ा सा पूरा कर दो, थोड़ा सा अनक्लियर है, मतलब अभी थोड़ा सा इसको और क्लियर करके फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ एशिया चल जाएगा वो भी, पर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है वो तो। ऑफ सर एशिया, नॉर्थ अमेरिका। सर सर यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रॉम नॉर्थ एशिया टू साउथ एशिया एंड साउथ एशिया टू। एक बात तो थोड़ा सा सीखो, जब कोई बोल रहा है ऑलरेडी तो बीच में नहीं बोलना होता है, ऑनलाइन पे ध्यान देना होता है इस क्लास में। अब तुमने सुन लिया था, रोहित भैया बोल रहे थे और फिर भी तुम बीच में बोल पड़े, तो पहले रोहित को अपनी बात पूरी करने दो। मैं नहीं हर्ष। सर हर्ष बोल रहा था। हाँ हर्ष बोल रहा था। बेटा थोड़ा सा सीखो इस चीज को ना, ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ हर्ष बोलो।
सर यहाँ पे है ना अमेरिका का मतलब है ना वो कॉन्टिनेंट वाला अमेरिका है या फिर कंट्री वाला अमेरिका है? कुछ भी हो सकता है, अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला ही होगा यार। सर तो फिर तो दो कॉन्टिनेंट हो गए ना अमेरिका के, नॉर्थ साउथ। तो नॉर्दर्न अमेरिका से साउथ अमेरिका में जाते हैं क्या? तो असर अपन ने आगे वो स्पेसिफाई कर दिया ना कि नॉर्थ से आते हैं, नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ वो और नॉर्दर्न नहीं होगा, फिर तो नॉर्दर्न नहीं मान लो ना, नॉर्दर्न रीजन ऑफ, अब नॉर्दर्न रीजन ऑफ अमेरिका हो गया, तो नॉर्दर्न रीजन ऑफ अमेरिका का मतलब तो क्लियर हो गया वैसे अपना। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने अपने सही गलत कर लेना बेटा, ईमानदारी से, चीटिंग मत करना, बता रहा हूं मैं बिल्कुल भी। सर इसका फाइनल आंसर बता दो। बेटा अगर चीटिंग करी तो ध्यान ले लेना इस बात को। टू वेयर डू दे ट्रेवल, फटाफट से आंसर लिख दो। सर ये इससे पहले वाले का फाइनल आंसर तो बताओ। बता दिया ना मैंने, फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। सर 5th क्वेश्चन क्या है? 5th नंबर नहीं पता मेरे को, नंबर तुम देखो। टू वेयर डू दे ट्रेवल, फ्रॉम और टू का अंतर समझ लेना आज अच्छे से जिंदगी में। सर टू वेयर डू दे ट्रेवल, टू वेयर। मम्मी है टू वेयर कैसे? टू वेयर, चेक कर लो इसका आंसर। टू साउदर्न वार्मर लैंड्स। क्या हुआ वैष्णवी? सर लैंड। बेटा ऐसी आएगा, अब थोड़ी बच्चों वाली चीजें थोड़ी चलेंगी, अब समझो चीजों सर ये आ जाएगा क्या? टू क्या? साउदर्न रीजन्स ऑफ एशिया एंड अमेरिका। नहीं 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 नहीं, सर मैंने ऐसे लिखा है, ऐसा टू तो नहीं नॉर्दर्न था। रीजन्स ऑफ साउथ। ज्यादा दिमाग मत लगाओ तुम, है ना, ज्यादा अपना ज्ञान मत डालो यहाँ पे, जो इसमें है सर। उसी में लो आप। सर नॉर्दर्न इसका तो that man told us the regions of northern area like Europe, America and Asia, but we have not been told the places of southern region here. Then how can you tell that southern regions of America and Europe or Asia? No, this is not good. Only southern warmer lands. सर प्लेसेस भी कर सकते हैं, नाम कीजिए। हाँ प्लेसेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ बोलो। सर अगर ओनली ऐसे करे तो साउदर्न प्लेसेस। टू लगाओ बेटा, टू साउदर्न प्लेसेस। हाँ सर वही हाँ टू कोई बात नहीं साउदर्न। है, कोई बात नहीं है। टू साउदर्न वार्मर लगा दोगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ओ अच्छा वैसे। हाँ ठीक है वार्मर सर। अपने को जरूरी हो गया ना यहाँ पर, आप समझ गए ना पैसेज का मतलब तो। हाँ सर। Why do they come here, मतलब why do they come here का अगर हम आंसर देखेंगे तो क्या आएगा वो? Why do they travel from northern regions to southern regions? Why? To have a warmer place. Why? To, or not Sir, only warmer places, for food, oh, for living close. alive. Because in northern areas, all things are covered in ice. There is ice everywhere. स्नो। Snow, ice. सर कोहरा। कोहरा नहीं, कोहरा is a different thing. कोहरा is fog. सर क्या चल रहा है? Snow becomes ice. When it falls, it is called snow. But when it gathers, when it deposited at a place and becomes a big mound of something like ice, that is called ice. सर मतलब बोलो ना, कोई सॉलिड बन जाए, एक सॉलिड चीज, बस वो आइस हो गया कि नहीं हो गया? बस वो हो गया आइस। सर और अगर आइस को हम पाउडर फॉर्म में करें तो वो स्नो है। सिंपल। बस वो चीज है। So my next question is, पाउडर भी सॉलिड ही है। हाँ सॉलिड ही है। अभी रुक जाओ, अभी साइंस में मत जाओ तुम, मेरे पैसे दे जाएगा अभी। यार हाँ छोटे सॉलिड में तो वो तो मोस्ट रहता है फॉग। what difficulties do these birds face when they travel from
when they travel, बस इतना ही ना। देखिए difficulties, which difficulties do they face? लिख दिया होगा। Sudden storms, flashing lights, और bright lights। सर फ्लैशिंग लाइट चलेगा? Flashing ओवर फ्लैशिंग थोड़ा सा चल जाएगा, चलने में तो हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। सर रिफ्लेक्शन सर हाँ सर बैड वेदर के अंदर सब कुछ आ जाएगा ना, जैसे रेन। बैड वेदर के अंदर सब कुछ रेन है, बैड उधर वेदर भी तेज आ है। सकता है। बैड वेदर, नहीं सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ बैड वेदर। कैसे आ जाएगा? लाइट कैसे आएगी? क्या सर सर? हार्डशिप्स में तो आ जाएगा ना, हैं? हार्डशिप्स में तो सब कुछ आ जाएगा। आ जाए। हार्डशिप्स में कैसे आ जाएगा सब कुछ? हार्डशिप्स इज मींस डिफिकल्टी। मैंने डिफिकल्टी यूज किया, उसकी जगह हार्डशिप भी यूज कर सकता था मैं। ओके सर। दे फेस बैड वेदर लाइक सडन स्टॉर्म, बस हो गया। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यस। वाइल्ड वेव वाइल्ड वेव्स, सर लार्ज वाटर लार्ज वाटर दोबारा बोल काजल। लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ वाटर नहीं, उनको तो वो क्रॉस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा, व्हाट सर? डू दे क्रॉस? सर हाँ, सर मैंने तो ये लिखा था, दे फेस हार्डशिप्स व्हाइल ट्रेवलिंग एंड ब्राइट लाइट्स स्लोज देयर माइग्रेशन स्पीड। नहीं नहीं नहीं, मेन तो स्टॉर्म्स होते हैं, सडन स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। सर ब्राइट लाइट वाला गलत हो जाएगा? ब्राइट लाइट वाला उस तरीके से गलत हो जाएगा, आंसर तो है इसका, लेकिन वो उस तरीके से जैसे आपने लिखा है वो गलत हो जाएगा। ओके सर। व्हाट डू दे क्रॉस व्हाइल ट्रैवलिंग? देखो आंसर फटाफट से। व्हाट डू दे क्रॉस व्हाइल ट्रैवलिंग? लिख दिया आंसर। इसका आंसर आएगा हिल्स, फॉरेस्ट्स, प्लेन्स, स्ट्रेचेस ऑफ वाटर। स्ट्रेचेस ऑफ वाटर की जगह आप सी लिख सकते हो भाई। जब वो उड़ सर करके मैं आते हैं, सिर्फ और जब वो उड़ करके आते हैं तो उड़ करके कैसे आएंगे? रास्ते में उनको पहाड़ भी पड़ेंगे, मैदान भी पड़ेंगे, नदियां भी पड़ेंगी, समुद्र भी पड़ेंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अमेरिका से उड़ करके अगर वो आ रहे हैं, इंडिया में अगर वो आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें पड़ेंगी कि नहीं? को क्रॉस करके आएंगे कि नहीं आएंगे? वो समुद्र को भी क्रॉस करके आना पड़ेगा। आप सोच के अंदाजा लगाओ जरा, आप कितना लंबी वो उड़ान भर करके आते हैं और लगातार चलते हैं, रास्ते में कहीं रुकते थोड़ी है। समझ में आ रही बात? साइबेरिया से पक्षी आते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ। A lot of birds come from साइबेरिया। साइबेरिया का डिस्टेंस कितना है? लगातार उड़ते हुए आते हैं, वो कहीं रुकते थोड़ी है रास्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बैड वेदर आ सकता है क्या? बैड वेदर तो है ही बेटा, बैड वेदर क्यों नहीं है? समझा तो रहे हैं हम आपको। बैड वेदर, अब स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, बैड वेदर ही तो है वो। समझ तो सही बेटा, बैड वेदर का मतलब खराब मौसम। तूफान खराब मौसम का ही तो है ना। कहते मौसम बड़ा खराब हो रहा है यार। क्या खराब हो रहा है मौसम में? कहते ना यार मौसम बहुत खराब हो रहा है आज। क्या खराब हो रहा है मौसम में बेटा? गंदा हो गया, नहाया नहीं है आज, क्या हुआ मौसम में? खराब होने का मतलब बरसात आ रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, तो मौसम खराब हो गया।
और दूसरा क्या है, ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट करती हैं उसको। एक क्वेश्चन है मेरा ये कि दे कैन नॉट, समटाइम्स दे कैन नॉट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट स्पीड, समटाइम्स, व्हाई? व्हाई? सर ये लिखना है। आंसर लिखना है, लिखना ही है, सब लिख ही रहे हो सबके, पूछना क्या है इसमें? सर क्या सर? क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन लिखना नहीं है, आंसर लिखना है, सुन लो। सर क्वेश्चन बोलना एक बोलो प्लीज। Sometimes they cannot fly at their fastest speed. Why? What is the reason of it? इसका आंसर आएगा ब्राइट लाइट्स, बिकॉज ऑफ ब्राइट लाइट्स। ब्राइट लाइट्स की वजह से वो उनकी स्पीड नहीं हो पाती, नहीं हो पाएगी ना। सर सडन स्टॉर्म्स। सडन स्टॉर्म्स भी हो सकता है, और सर ऐसे बोलो ये सर। भी हो सकता है। सर और फिर ऐसे लिखा है बिकॉज ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट देम। हाँ बिल्कुल, एंड कंफ्यूज देम। and confuse them. Bright lights attract them and confuse them, so that is why they become slow. Sometimes we go outside, कभी कभी हम बाहर जाते हैं, रात के टाइम गाड़ी की स्पीड कम होती है कंपैरेटिवली, अगर हम दिन से कंपेयर करें तो उसको, if we compare to the day, at the night time the speed of vehicle is slow. Why? क्यों? सर का आंसर ये भी हो सकता है ना, बिकॉज दे फेसेस मेनी डेंजर्स और हार्डशिप्स। ये भी हो सकता है। क्योंकि सामने से जो लाइटें पड़ती है ना, आप लोगों ने कभी रात को ट्रैवल किया होगा, सामने से जो लाइटें पड़ती है ना, तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, कोई व्हीकल कहीं अपने ऊपर ही तो नहीं आ रहा है छाती पे चढ़ के। अब तो कहीं डिवाइडर बन गए एक्सप्रेस वेज पे, हाईवेज पे, तो पता रहता है कि हाँ यार दूसरी तरफ ही जा रहा है वो। लेकिन जहाँ पर डिवाइडर ही नहीं है, एक ही रोड है, वहां पर तो हालत खराब हो जाए। अभी इंटीरियर में चले जाओ तो, अब मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है ना, मैं बहुत आता जाता रहता हूँ, तो वहाँ जो छोटे छोटे अंदर चले जाते हैं, जब दिक्कत, एक्सप्रेस वे पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, हाईवेज पे कोई दिक्कत नहीं होती, बीच में डिवाइडर बने हुए होते हैं। और वहाँ किसी गांव वाले इलाके में ऐसे चले गए जहाँ पर एक ही सड़क है, तब तो रात को गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सामने वाले की लाइट जो होती है वो कंफ्यूज कर देती है। Why do the birds come to the southern lands? Why do the birds come हो गया था। to the southern lands? सिंपल सा आंसर आना चाहिए। लिख दिया? सोचने की बात है, यहाँ पर क्यों आते हैं वहां से, वो बता भी दिया था मैंने इसका आंसर आपको। तो इसका आंसर आएगा, आपने लिख दिया होगा, फॉर शेल्टर एंड फूड। सर मैंने लिखा है टू थ्राइव एंड ईट। सर मैंने थ्राइव तो थोड़ा सा ठीक नहीं है सर। ईट भी ठीक नहीं है, फूड लिखो ना। सर हाँ सर हाँ मैंने लिखा इन सर्च ऑफ फूड एंड गेटिंग वार्मनेस। हाँ ठीक है, ओके, पर छोटा लिखो। हाँ, तो फॉर सर शेल्टर आ गया, गेटिंग वार्मनेस का मतलब शेल्टर आ गया, फूड आ गया, तो वहां पर आपका वो आ गया। वहां पर ईट थोड़ा सा हल्का वर्ड है, खाने के लिए आते हैं या भोजन के लिए आते हैं? सर फॉर फूड एंड लिव अलाइव। हाँ ठीक है, फॉर फूड एंड लिविंग टू लिव अलाइव, ठीक है, पर वो बात ही वही होगी ना। अब हमने कहा फॉर शेल्टर एंड फूड, सब कुछ आ गया इसके अंदर। फिर भी ठीक है, आपने जो लिखा है घबराओ मत, धीरे धीरे पकड़ने लग जाओगे चीजों को। सर ये भी आ सकता है कि टू सर्वाइव एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। अर्न देयर लाइवलीहुड तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो तो मनुष्य ही करते हैं। ठीक है, सर टू सर सर्वाइव मैंने कर तो सकते हो आप, टू सर्वाइव इज ओके। अब टू सर्वाइव में सब आ गया, रहना खाना पीना सब आ गया, टू सर्वाइव, बहुत अच्छा। सर हाँ, सर मैंने तो टू गेट वार्मथ लिखा है बस। और फिर खाना खाना कहाँ से मिलेगा? भूखे रहेंगे, मरने जाएंगे, सूख के कांटा हो जाएंगे। नहीं सर, वो सर आगे नहीं लिखा। वही तो बात है ना, इसलिए तो सोचना है थोड़ा चीजों को। सर सही कर दूं? कर दे,
Sir, for suitable environment. सूटेबल एनवायरनमेंट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं Sir, है। for सूटेबल एनवायरनमेंट एंड फूड तो लेना पड़ेगा भैया, भूखे तो मर जाएंगे वो बेचारे, वापस कैसे जाएंगे वो। एनवायरनमेंट Sir, food होगा इसलिए तो आ रहे हैं फूड का, तो तो एनवायरनमेंट में फूड कैसे जाएगा? हाँ आ जाएगा, एक तरीके से आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है तेरा, मैं पूरी तरीके से गलत नहीं कह रहा हूँ, पर टाइटल ऐसा रखो अपना खट से समझ में आ जाए सामने वाले को कि हाँ यार, क्योंकि आगे क्या होता है, जैसे आप लोग कंपटीशन वगैरह को आप फेस करोगे ना, तो दैट टाइम क्या होता है, वहां पर इस तरह की चीजें आती हैं, वहां आपको छोटा सा पैसेज देंगे, कहेंगे कि टाइटल बताओ इसका, और 4-5 ऑप्शन दे देंगे, आप ढूंढो, और सारे ऑप्शन एक जैसे लगेंगे तुम्हारे को, जो मोस्ट सुटेबल होगा वो होगा वो। अब मुझे एक वर्ड, एक मैं लाइन बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, आई एम सेइंग यू सम वर्ड्स and you have to give one word for that phrase. The movement of birds from one place to another. One word में आंसर चाहिए इसका। The movement of birds from one place to another. लिख दिया? सबने लिख दिया? तो क्या होना चाहिए इसका? माइग्रेशन। सर आपको क्या लगता है? अरे वो क्या लगता है? सर माइग्रेन। होना चाहिए। सर माइग्रेन। यस सर। माइग्रेन होता है क्या पागल? माइग्रेन तो एक सिर दर्द होता है, उसको बोलते हैं माइग्रेन। सर ट्रेवलिंग भी हो सकता है। ट्रैवलिंग भी हो सकता है, पर बर्ड्स का जो ये होता है ना, ये खाली ट्रैवलिंग, दिस इज नॉट ओनली ट्रैवलिंग, बस दिस इज अ काइंड ऑफ माइग्रेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को? माइग्रेशन होता है जब हम कुछ समय के लिए वहां जाकर के उस चीज को रहने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं। आपको एक ज्ञान होगा, आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है अपने बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। जब आप लोगों ने 12th क्लास पास की होगी तो उस समय आपको मार्कशीट के साथ में एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा। याद ही नहीं है, देखते ही नहीं है, हम तो पढ़े लिखे हैं बस। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपको बोर्ड देता है कि भैया अभी तक हमारे पास थे, अभी ये नहीं है। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका जमा होता है, यू हैव टू डिपॉजिट दैट माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन योर न्यू कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर यू वांट टू टेक एडमिशन। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहां जमा होगा। आजकल तो मार्कशीट के साथ में आने लग गया, वो एक साथ ही आने लग गया। वो पहले अलग अलग आता था, अब आजकल एक साथ ही आने लग गया। अब आप जब तक इस यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, यहाँ पर आप माइग्रेट हो, जैसे ही आप इस यूनिवर्सिटी से निकल करके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे एडमिशन के लिए, तो आपको यहाँ के यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर आप उसको दूसरी यूनिवर्सिटी में जमा करवाओगे। तो माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई चीज करने लग जाना, रहने लग जाना, लाइक दैट। और सर इमाइग्रेट भी तो होता है कुछ? इमिग्रेशन होता है वो। यस सर, इमिग्रेशन। वो यही होता है, वो बाहर के लिए होता है। वो बाहर जाते हैं हम लोग आउट ऑफ इंडिया, तो ऐसे थोड़ी चले जाओगे तुम, गए एयरपोर्ट में टिकट ले गया और पहुंच गए ना। आप यहाँ से एयरपोर्ट में, आप नेशनल फ्लाइट में यू हैव नो प्रॉब्लम, आप टिकट लो, बैठो और जाओ आराम से कहीं भी। और अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में हैं और आपको अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट अगर आपको लेनी है, आपको दूसरी कंट्री में जाना है, तो आपको जिस एयरपोर्ट से आप अपनी फ्लाइट ले रहे हो ना किसी जगह जाने के लिए, समझ रहे ना मेरी बात? हमको भी पहले पता नहीं था, पता चल रहा है जब हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो भी मेरी बेटी गई थी श्रीलंका, गई थी वो भी 16 तारीख को। तो यहाँ से बॉम्बे की, मुंबई की फ्लाइट थी, तो वो तो लोकल हो गया ना, मतलब वो तो नेशनल फ्लाइट हो गई। और मुंबई से फिर कोलंबो की फ्लाइट थी, यानी कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो गई। तो मुंबई एयरपोर्ट पे उनको इमिग्रेट होना पड़ा, उनको अपने सारे पेपर्स दिखाने पड़े कि यस वी आर गोइंग देयर फॉर दिस पर्पस एंड दीज आर आवर डॉक्यूमेंट्स एंड दिस इज। आप ऐसे नहीं जैसे यहाँ से मुंबई में तो किसी ने नहीं देखा, कुछ भी नहीं, टिकट है भाई चलो। अब मुंबई से कोलंबो जाना है तो ऐसे थोड़ी चले जाओगे मन मर्जी से, आप टिकट लिया और बैठ गए।
वहां पर आपको अपना इमिग्रेंट होना पड़ेगा, यानी कि वहां पर आपको अपनी चीजें दिखानी पड़ेंगी, क्यों जा रहे हो, क्या वीजा है आपके पास में, बिना परमिशन के जा सकते हो क्या, क्यों जा रहे हो, कि क्या पर्पज है, कहाँ से आप जा रहे हो, वहां का लेटर दिखाओ, आपके अपने पेपर्स दिखाओ, आप अपना पासपोर्ट दिखाओ। बिना पासपोर्ट के थोड़ी चले जाओगे आप, बम्बई तो चले जाओगे बिना पासपोर्ट के, इंटरनेशनल फ्लाइट में थोड़ी चले जाओगे आप। वो सारी चीजें फिर वहां पर इमिग्रेंट होती है, उसमें घंटे 2 घंटे का टाइम लग जाता है चेक होने में। तो चेक होने के बाद में फिर वो जाते हैं। अब वापस फिर वो कोलंबो से बॉम्बे आई पहले, वहां पर फिर वो इमिग्रेंट होगा, वो सारा चेक किया जाता है। आप आए हो तो कैसे आए हो, इंटरनेशनल फ्लाइट से आप आए हो, क्या पर्पज है आपका आने का, कहाँ से आए हो, पहले गए थे, वो सारी चीजें वो इमिग्रेशन कहलाती। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ रिपेल, REPEL, रिपेल। रिपेल। देखो बराबर से REPEL, रिपेल। सर सिमिलर लिखना है, अपोजिट लिखना है? अपोजिट लिख दो, चलो अपोजिट लिख दो। फिर एक बार वर्ड वापस बोलना। रिपेल, REPEL। इसका अपोजिट लिखना है। हाँ, इसका अपोजिट होगा अट्रैक्ट। सर सिमिलर क्या होगा? है सिमिलर। डिस्ट्रैक्ट, सर सिमिलर होगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। डिस्ट्रैक्ट वो है ही नहीं इसमें। ओके सर। चलिए ठीक है, इसके आंसर आप देख लेना कितने सही है कितने गलत है, नंबर दे लो अपने अपने ईमानदारी से। कितने क्वेश्चन हुए टोटल? सर टोटल से क्वेश्चन 11 में से नंबर दे लो आपके कितने कितने ईमानदारी से। सर हाँ बोल। अगर कोई आंसर आधा हो और आधा सही हो और एक्चुअल आधा गलत आंसर हो अगर तो आ गया है, एक्चुअल जो आंसर है वो अगर आ गया है, और अगर मान लो किसी आंसर की 2 चीजें हैं, जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें आपने एक ही तरफ का लिखा है तो आधा नंबर दे दो, दोनों अच्छा तरफ का लिखा है तो 1 नंबर दे दो। एक्चुअल आंसर आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है वो। आधा आ रहा है एक्चुअल आंसर तो आधा नंबर दे दो। सर वो एक क्वेश्चन था ना साउदर्न वॉर में, तो सर साउदर्न रीजन लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं बेटा। चलिए सर वो क्वेश्चन